welcome back to the channel. Now, from today onwards, I will be uploading a series of lectures related to class 10th, that is CBSE board biology topics. And today we are going to start with the very first topic, that is life processes. That is the first chapter of biology in class 10th CBSE. And today we are going to started with the first topic and we will be continuing in series. Now, as we have seen that the chapter name is life processes. What does this word means? अगर हम लाइफ प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है? तो प्रोसेस क्या होता है? Process when any steps or work that is done. तो processes, what is processes? It is the series of steps that is performed. ठीक है, जब कोई भी काम हम करते हैं और वो steps में करते हैं, that is the process, that is known as a processes. Now life, when this word is attached to the life, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? There are series of steps that is done in for what? For life. That means all living organism perform this life processes. So all living organism perform series of steps in order to maintain their life. Maintain their life का मतलब क्या होता है यहाँ पे? Maintain their life so they may be live alive. ठीक है ना, ताकि वो जिंदा रह सके. Like in life processes, what are the important processes of the life जिसके बिना एक human का या एक animal का survival exist ही नहीं कर सकते. They cannot exist. The very first is digestion. सबके लिए important है. The food we eat. सबसे पहला क्या है कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए ताकि हम डेली लाइफ एक्टिविटीज कर सकें. और जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो उसमें से हमें अपने न्यूट्रिएंट्स डिराइव करने रहते हैं, जो कि किसके थ्रू होता है? डाइजेशन. तो डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म. And this simpler form contain the nutrients that is provided to the body. And what does the body does? वो body इन nutrients का क्या use करती है? They utilize the body. They utilize these nutrients to form energy in the form of ATP. ये ATP यानी कि एनर्जी बनाती है, तभी तो हम अपनी लाइफ में जो भी प्रोसेस है वो कर सकते हैं. लाइक इफ वी आर वॉकिंग, वी नीड एनर्जी. Where does this energy is coming from? This energy is coming from the food, and the food is being digested. So digestion is one of the most important life process. And in this chapter, we will see various other processes like circulation. Circulation is also very important. Circulation में क्या होता है? Blood flow through vein, arteries, capillaries. These blood carry what? They carry oxygen and CO2. ठीक है? So they play a very crucial role in removal of carbon dioxide from the cell and providing oxygen to the cell. And not only oxygen, but the nutrients. The nutrients that are digested here, which have been absorbed by the small intestine, it has to be provided to every part and each cell of the body. Because ऐसा तो नहीं है ना कि अगर डाइजेशन स्टमक में हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, और अब्जॉर्प्शन सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, तो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन को ही वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए? नो. इवन द फिंगर टिप्स इज हैविंग अ सेल. उस सेल में भी ग्रोथ हो, वो डिवाइड हो, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए. सो वो न्यूट्रिएंट्स एक फिंगर टिप में कैसे पहुंचेगा? जो चीज ऑलरेडी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है एब्जॉर्प्शन, वो यहाँ तक पहुंचने के लिए दे नीड अ स्ट्रीम, they need something to flow, so it occurs through a circulation, and the heart play a very crucial role because heart is a pumping organ which pump the blood, and these blood
carry deoxygenated and oxygenated blood and along with the nutrients. Like also there are other processes like excretion. Excretion is also one of the most important process. इन सबके साथ excretion का भी बहुत important role होता है because the food that we have ingested, digested and absorbed, वो पूरा काम का हो ये जरूरी नहीं है. The waste has to be removed timely to timely. Like carbon dioxide is removed from the lungs. तो carbon dioxide एक gaseous form है जो lungs के through और mouth के through या nose we exhale out. But अगर जो food हमने लिया है, how does that solid food which is break into a simpler form, the waste can be removed. The waste is removed through excretion, through the process of excretion in which kidney are involved. So there are various life processes that are very important for a life, so that the organism, all living organism may perform those functions and they may continue their life and they may be live longer life or they can be said to be alive. Okay, they live their own life. So in today's topic we will be seeing, we have seen this now. इसके बाद हम लोग देखेंगे आज जो हम लोग को टॉपिक्स देखने हैं, आई एम राइटिंग हियर न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, nutrition in amoeba and nutrition in animals. Okay, so these are the 4 topics that we are going to see in this further video. Now we will start with the first topic, that is nutrition. अगर हम nutrition की बात करें, it's a very common term we use in our day-to-day life. But अगर हम पूछते हैं that what is the definition of nutrition? So what do you mean by nutrition? So nutrition is a process. ठीक है? Nutrition, it is a process of न्यूट्रिशन में हम लोग क्या करते हैं, अगर हम हिंदी में देखें कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो हमें प्रोवाइड हो. तो न्यूट्रिशन यही एक प्रोसेस है. न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ providing nutrients to the body. ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. और न्यूट्रिएंट्स किस फॉर्म में होते हैं? न्यूट्रिएंट्स इज नथिंग बट इट इज अ कार्बोहाइड्रेट. वी कैन से कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सारे क्या हैं? दीज आर न्यूट्रिएंट्स दैट वी नीड इन आवर डे टू डे लाइफ टू कैरी आउट वेरियस एक्टिविटीज. ठीक है, तो अगर हम सिर्फ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. हम जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उसके प्रोसेस को कहते हैं. एंड दीज न्यूट्रिएंट्स, इट्स नॉट ओनली इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. पहला पॉइंट हम ये ले सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है जहां इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो रहे हैं. एंड नॉट ओनली इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बट दीज न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड. ठीक है, वी आर यूटिलाइजिंग these nutrients to provide what? To provide energy, and this energy is used to perform various activities. So this is what the nutrition means. तो अगर definition पूछते हैं nutrition का तो उसका मतलब ये होता है it is a process of intake of nutrients which is carbohydrate, vitamins, minerals, and these nutrients are utilized by our body to provide energy to our body itself. Okay, and now the next topic is modes of nutrients. Modes of nutrition का क्या मतलब होता है? There are various methods. Modes of nutrients means various methods of providing nutrients to the body. There are various processes. ठीक है, depending on the organism there are different processes. Different organism में different
प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू उसमें क्या मिलता है, उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सो मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स का ये मतलब होता है। Now, अगर हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स को देखते हैं तो जस्ट कितने टाइप के मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। सो द वेरी फर्स्ट मैं यहाँ हेडिंग डाली हूँ, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब वेरियस मेथड्स which is adapted by an organism so they may take nutrients, ताकि उनको nutrients मिल सके। तो सबसे पहले जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है वो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सेकेंड इज अ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अगर हम ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो क्या होते हैं? ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ, ठीक है, खुद से। ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज अ मेथड इन विच द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, मेक देयर ओन फूड by utilizing inorganic substances ठीक है, by utilizing inorganic substances and converting this inorganic substances into organic substances। वो inorganic substances को क्या करते हैं, किस में कन्वर्ट कर देते हैं? वो कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, ठीक है। तो अगर हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये किस में देखा जाता है? दिस इज मेनली सीन इन प्लांट्स। प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स, वी कांट से दैट एग्जैक्टली, बट प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स आर दोज दैट आर केपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लेते हैं और उनको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। यही ऑर्गेनिक सब्सटेंस उनका फूड होता है। तो दे मेक ग्लूकोज एंड दे कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू स्टार्च। स्टार्च इट इज स्टोर्ड इन प्लांट्स फॉर फ्यूचर यूज। ग्लूकोज को तो यूटिलाइज कर लेते हैं, बट जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। सो दे मे यूज इट इन फ्यूचर, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद का खाना खुद से बना सकते हैं, दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। नाउ प्लांट्स समटाइम्स इट कैन बी सेड एज ऑटोट्रॉप्स और फोटोट्रॉप्स। इसे फोटोट्रॉप्स भी कहते हैं। फोटोट्रॉप्स इसलिए कहते हैं बिकॉज फोटो मीन्स लाइट। डोंट गेट कंफ्यूज विद दीज टू वर्ड्स, इट्स फॉर सेम, इट इज फॉर ऑटोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ओनली। फोटोट्रॉप्स हम तब कहते हैं when they utilize light, क्योंकि प्लांट जो कि एक ऑटोट्रॉप्स या फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं, वो क्या करते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो अगर प्लांट्स में हम लोग क्या कर देखते हैं? प्लांट्स दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं? वो रॉ मटेरियल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। वो इन सारे रॉ मटेरियल को लेते हैं और इससे अपना क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। C6H12O6 that is glucose in the presence of what? In the presence of light। तो इसलिए इन्हें फोटोट्रॉप्स भी कहते हैं और ऑटोट्रॉप्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली तो हो तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही रहा है। सो प्लांट्स जनरली शो दिस। नाउ हाउ दे परफॉर्म, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे उनको कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करते हैं, कैसे वाटर मिलता है, कैसे कन्वर्ट होता है, वी विल सी इन when we will discuss the nutrition in plants. But before that, we have to discuss about heterotrophic mode of nutrition. ठीक है, अगर हम सेकेंड बात करते हैं हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रो का मतलब क्या होता है? तो हेट्रोट्रॉपिक इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ सेल्फ। दैट मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन अनदर, they are dependent on other organism. They are incapable
Incapable means they cannot make their own food. They are incapable of making their own food, and they are hence they are dependent on another. ये हमने पहले ही बताया कि वो इसीलिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि वो खुद का खाना खुद से नहीं बना सकते. लाइक वेरी कॉमन एग्जांपल, humans cannot make their own food. Animals, they cannot make their own food. Humans, animals, ये सब किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ये सब ऑटोट्रॉप्स पे ही तो डिपेंडेंट होते हैं कहीं ना कहीं. जो हम आज खा रहे, whatever the food we are eating, the fruits, the food, the crop, the cereals, we are getting from the plants itself. We are not using inorganic substances. हम inorganic substances को यूज करके organic substance बना रहे हैं, उसको खाने की तरह नहीं यूज कर रहे हैं, बल्कि we are using the product. ठीक है, the product of plant के ही products हैं. plant का product है fruit, vegetables, इन सब को यूज कर रहे हैं और उससे एनर्जी ले रहे हैं, वो एज अ फूड यूज कर रहे हैं. सो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, those organisms which are incapable of making their own food and they are dependent on other organisms to provide nutrition, that those organisms are known as heterotrophs. ऐसे organisms को हम लोग क्या कहते हैं? heterotrophs कहते हैं. और heterotrophs जो तरीके का न्यूट्रिशन शो करते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है. हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का नाम है, लेकिन इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, मतलब जो एग्जांपल्स हैं, उनको क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं. नाउ हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कॉमनली इनटू 3 टाइप्स. ठीक है, ये फर्दर डिवाइड होता है 3 तरीके में. द वेरी फर्स्ट इज सैप्रोफाइट्स और सैप्रोट्रॉफ्स, जो भी कह सकते हैं, दोनों ही वर्ड यूज होते हैं. पैरासाइट एंड थर्ड इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन. सो ये 3 तरीके के फर्दर डिवीजन है. ये तीनों ही हेट्रोट्रॉप्स है, मतलब ये तीनों में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. लेकिन वो किस टाइप के फूड पे डिपेंडेंट होते हैं, इसके बेसिस पे ये 3 डिवीजन है. जैसे कि सैप्रोफाइट्स और सैप्रोट्रॉफ्स की बात करें तो इसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो खुद का खाना खुद से नहीं बना सकते. दे आर इनकेपेबल ऑफ मेकिंग फूड. ठीक है, दे आर इनकेपेबल ऑफ मेकिंग फूड, बट दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस. ठीक है, वो अपना न्यूट्रिशन कहां से ले रहे हैं? वो अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं डेड और डिकेइंग सब्सटेंस से. सो ये तीनों ही हेट्रोट्रॉप्स के टाइप है, क्योंकि ये तीनों ही खुद का खाना खुद से नहीं बना सकते, लेकिन ये तीनों अलग अलग जगह से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, इसलिए ये 3 पार्ट में फर्दर डिवाइडेड है. तो ये कहां से ले रहा है? ये डेड और डिकेइंग सब्सटेंसेस. ठीक है, इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है मशरूम, agaricus, mushrooms that we see. Mushrooms क्या होते हैं? जो पुराने wood logs होते हैं ना, wooden logs या ऐसी places which is not very clean, ये वहां पे mushrooms they grow. और ये क्या करते हैं? ये कुछ substances secrete करते हैं और ये इन woods में एक process करते हैं जिसके थ्रू ये इसको further break करते हैं and they utilize it as a food. और वहां पे जो ब्रेक डाउन होता है, दे रिलीज सर्टेन एंजाइम्स. ये एंजाइम्स इस सरफेस पे ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है, इनके सेल में क्या होगा? प्लांट के सेल्स हैं, अगर ये वुड लॉग है या कुछ भी है तो इसमें क्या हो सकता है? इसके सेल में सेल्यूलोज हो सकता है. तो वी कैन से कि ये सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करते हैं या उसको यूज करते हैं अपने किसके लिए? अपने नरिशमेंट के लिए, फॉर देयर न्यूट्रिशन. सो इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है मशरूम. तो ये एक पहला, होपफुली इट हैज बीन क्लियर टू यू ऑल. द सेकेंड वन इज द पैरासाइट. पैरासाइट आर, पहली लाइन इसमें भी सेम रहेगी, दे आर इनकेपेबल ऑफ मेकिंग फूड. ठीक है ना? तो ये वाली जो लाइन है, इट इज सेम फॉर ऑल हेट्रोट्रॉप्स, whether it is saprophytes, parasites or
holozoite. ठीक है, parasites are also those which are incapable of making their own food, but they feed on or inside other organism, और जिसके ऊपर वो फीड करते हैं उसको हम स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट एज अ होस्ट. ठीक है, और अब मैंने यहाँ पे दो वर्ड लिखा है, दे फीड ऑन और इनसाइड. तो व्हाई आई हैव रिटन दिस टू डिफरेंट वर्ड्स, कि मैं ये भी कह रही हूँ फीड ऑन मतलब उसके ऊपर भी और उसके अंदर भी, बिकॉज पैरासाइट्स आर जनरली ऑफ फर्दर टू टाइप्स. एक्टोपैरासाइट मतलब जब कोई पैरासाइट किसी होस्ट की बॉडी के ऊपर रहता है. ठीक है, पैरासाइट when they live on the host, जो वो होस्ट के ऊपर रहता है. ठीक है, तो ectoparacytes are those organisms which are incapable of making their own food and they are living on the host body and deriving their nourishment. ठीक है, and deriving their nutrients from host. ठीक है, और वो अपने nutrients कहाँ से लेते हैं, they are deriving their nutrients from the host. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं. द वेरी कॉमन एग्जांपल आर लीचेस. लीचेस होते हैं वो ब्लड सकर्स होते हैं. इफ दे स्टिक टू द बॉडी दे सक द ब्लड. ठीक है, एक बहुत कॉमन एग्जांपल है टिक्स, लीस दैट हैविंग ऑन द पर्सन्स हेयर. इसके बाद आता है एंडोपैरासाइट. एंडोपैरासाइट मीन्स, एंडो मीन्स इनसाइड. तो एंडोपैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म जनरली which live inside the host and they derive their nutrients, and sometimes if their number increase they may cause the death of the host also. इसका बहुत common example है Ascaris. तो endoparacytes are क्या है, which is living inside the host body and they are driving the nourishment and the nutrients. Ascaris, roundworm we can say. ठीक है, these are living in the body of the ऑर्गेनिज्म एंड दे आर, जो भी बॉडी में ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स फ्लो हो रहे हैं वो इनके उनको यूटिलाइज कर रहे हैं. ठीक है, एंड दे आर ग्रोइंग इन नंबर. थर्ड वन इज द होलोजोइक. होलोजोइक इज आल्सो अ टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन व्हिच आर इनकेपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड एंड दे फीड ऑन द कॉम्प्लेक्स फूड. होलोजोइक आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच फीड ऑन complex food and they break these complex food into simpler one through a process of digestion and they absorb and later they absorb it. ठीक है, और बाद में वो क्या करते हैं, वो इन फूड का अब्जॉर्प्शन करते हैं ताकि उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिल सके. होलोजोइक का बहुत कॉमन एग्जांपल है ह्यूमंस. व्हाट डज वी डू, हम इनटेक द कॉम्प्लेक्स फूड. हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक करते हैं. ठीक है, और उसको हमारे माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, सिंपलर फॉर्म में टूटता है एंड देन इट इज यूटिलाइज्ड एंड एसिमिलेटेड and it is provide nutrients to every part of the body. So that is the Holozoic type of nutrition. So our second topic is also being covered, that is mode of nutrition. Now nutrients in plant, हमने ये तो पढ़ लिया that plants are autotroph, they perform photosynthesis and they make organic substances as the food from utilizing inorganic substances. But how does this process take place? ये प्लांट्स में होता कैसे है, what are the organelles that is involved, where the photosynthesis is taking place, we will see in this topic, that is nutrition of plant. Our topic is nutrition in plants. ठीक है, so अगर हम बहुत बेसिक स्ट्रक्चर प्लांट का बनाएं तो प्लांट का स्ट्रक्चर, आई एम जस्ट मेकिंग अ रफ डायग्राम लाइक दिस ओनली. दिस इज द सॉइल, दिस इज रूट्स, and this is stem, and this is
लीव। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा प्लांट। नाउ वी नो दैट प्लांट आर ऑटोट्रॉफ्स, they make their own food and utilize the inorganic substances and convert it into organic substances, and they perform what? They perform photosynthesis. Now what is photosynthesis? Photosynthesis is a process, ठीक है। photosynthesis एक ऐसा process है where the raw material, that is carbon dioxide, water, is being utilized to convert it into organic substances, that is glucose, or glucose is used for providing energy and carry out various processes inside the plant. But actually, where does this phenomena of photosynthesis take place? And actually photosynthesis is conversion of light energy into a chemical energy. Light energy क्यों? क्योंकि this CO2 and water is converted into glucose in the presence of sunlight. So photosynthesis is a conversion of light energy into chemical energy. ठीक है, सो हमारा पहले कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए। सबसे पहला ये कि प्लांट आर ऑटोट्रॉफ, दे शो ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन and they are capable of making their own food by the process known as photosynthesis. In photosynthesis, the light energy is converted into a chemical energy. Photosynthesis is a process in which raw material like CO2 and water are being converted into glucose, which is later stored in the form of starch. Now, where does this photosynthesis take place? तो अगर हम किस पार्ट में हो रहा है उसकी बात करते हैं तो photosynthesis take place in leaves. लेकिन leaves में भी exactly कहाँ पे हो रहा है? That is in क्लोरोप्लास्ट। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल है, मतलब सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल प्रेजेंट रहती है जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। ठीक है, सो अगर हम लीफ का एक सेक्शन लेते हैं, एक पतला सा सेक्शन, और इसको हम वी लुक इट इन अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसके कई सारे पार्ट रहते हैं। दिस इज, आई एम जस्ट मेकिंग अ रफ डायग्राम। दिस इज अपर एपिडर्मिस, this is lower epidermis. Okay, this is lower epidermis. ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे भी क्यूटिकल की लेयर, जो भी हम कह सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द अपर एपिडर्मिस, दिस इज लोअर एपिडर्मिस। बीच में क्या होते हैं? मीजोफिल की सेल्स होती हैं, ये लॉन्ग सेल्स होती है पैलिसेड वाली, और ये स्पंजी सेल्स होती है। ठीक है, तो इन सेल्स में क्या होता है? इन सेल के अंदर क्या होंगी? सेल ऑर्गेनल होगी। तो बहुत सारी सेल ऑर्गेनल होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैसे ही कुछ सेल ऑर्गेनल्स जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, वो भी प्रेजेंट होती है। एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट, आई शुड मेक इट विद द ग्रीन, क्योंकि उसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है, एंड यही पिगमेंट अब्सॉर्ब करता है सनलाइट। ठीक है, दिस क्लोरोफिल अब्सॉर्ब्स द सनलाइट। ठीक है, तो यही इसी सेल ऑर्गेनल में ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस। So if someone asks कि क्लोरो किस ऑर्गन में हो रहा है प्लांट के, दैट इज लीफ। लेकिन हम पर्टिकुलरली पूछें कि किस जगह, which place the photosynthesis taking place, तो the answer is the chloroplast। क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, अब होता है क्लोरोप्लास्ट में, लेकिन रॉ मटेरियल्स भी तो इस क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचना चाहिए। रॉ मटेरियल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एक है गैसियस सब्सटेंस, एक है लिक्विड सब्सटेंस। वाटर हम प्लांट को देते हैं। ठीक है, तो वाटर हम लोग कहाँ देते हैं? वाटर हम लोग देते हैं सॉइल में।
वी आर प्रोवाइडिंग वाटर। तो वाटर हम लोग सॉइल में देते हैं, इट इज अब्सॉर्ब्ड बाय, कौन अब्सॉर्ब करता है? इट इज अब्सॉर्ब्ड बाय रूट्स। तो रूट्स इस वाटर को अब्सॉर्ब करती है और उसमें एक कंपोनेंट होता है दैट इज जाइलम। जाइलम वेसल्स होते हैं, ठीक है। जाइलम वेसल क्या करते हैं, लाइक इन आवर हाउस, हमारे घर में अगर पानी आता है तो पाइपलाइन का कनेक्शन होता है, तो कहीं एक जगह अगर मोटर है तो हर जगह घर में पानी आता है। क्यों? क्योंकि वो पाइपलाइन के थ्रू मूव होता है, ठीक है, पाइपलाइन के अंदर मूव होता है। तो वैसे ही रूट्स आर केपेबल ऑफ ऑब्जॉर्बिंग वाटर, बट हमें पहुंचाना है एग्जैक्टली लीफ के क्लोरोप्लास्ट में। तो लीव्स तक पहुंचाने के लिए कौन इंपॉर्टेंट होगा? जाइलम। तो सबसे पहला अगर हम रॉ मटेरियल देख रहे हैं, सबसे पहला रॉ मटेरियल क्या है? वाटर। एंड वाटर का कंडक्शन ऑफ वाटर इज टेकिंग प्लेस बाय जाइलम। तो कंडक्शन ऑफ वाटर कहां से हो रहा है? जाइलम से हो रहा है, एंड जाइलम से ये लीव्स में पहुंच रहा है, क्लोरोप्लास्ट में पहुंचा है। तो पहला रॉ मटेरियल पहुंच गया। सेकेंड थिंग वी नीड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, बट एग्जैक्टली हमें कहाँ चाहिए? हमें लीव्स के मेसोफिल सेल्स में चाहिए। दीज आर द मेसोफिल सेल्स। तो मेसोफिल सेल्स में अगर हमें चाहिए तो इसके अंदर के जानी चाहिए, तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है वो एक ओपनिंग होती है, जैसे ये मैंने यहाँ बनाई है, दिस इज, ये ओपनिंग है, बीच में होल है, दिस इज व्हाट, दिस इज स्टोमेटा, ठीक है। तो लोअर एपिडर्मिस में लीफ की क्या होता है? स्टोमेटा, विच इज अ स्मॉल ओपनिंग guarded by guard cell, ठीक है, which is guarded by the guard cell। तो स्टोमेटा क्या होता है? अगर हम इसको थोड़ा ब्रॉड बनाएं तो स्टोमेटा कुछ नहीं है, स्टोमेटा एक होल है दो गार्ड सेल के बीच में, दिस इज स्टोमेटा। ये दो गार्ड सेल इसको गार्ड करती है, इसीलिए इसका नाम है गार्ड सेल। गार्ड करती है मीन्स दीज रेगुलेट the opening and the closing of stomata, कि स्टोमेटा कब ओपन होगा और कब बंद होगा इसको गार्ड करता है, ठीक है। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसी स्टोमेटा के थ्रू अंदर मूव करता है, ठीक है। अब ये कब ओपन होगा? ठीक है, तो ये तब ओपन होता है व्हेन दीज गार्ड सेल अब्सॉर्ब वाटर। अब जब, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बलून है उसमें हम वाटर फिल करते हैं तो वो क्या हो जाता है? इट ग्रोज इन साइज, ठीक है। तो ऐसे ही इन गार्ड सेल्स में, ठीक है, इन गार्ड सेल्स में अगर वाटर फ्लो हुआ इनसाइड तो ये गार्ड सेल्स क्या हो जाती हैं? दे स्वेल अप, ये स्वेल हो जाती हैं। इनके स्वेल होने की वजह से क्या होता है? ये फूल गए, इनके फूलने की वजह से ये जो बंद थे they become open and they become distinct from each other. So through this opening, इसके थ्रू क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर के तरफ मेसोफिल सेल्स के तरफ चला जाता है, ठीक है। और when it has to become closed, now ये हर समय स्टोमेटा ओपन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर स्टोमेटा ओपन रहेगा और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हाई है तो इसके थ्रू वाटर भी रिमूव हो सकता है, ट्रांसपिरेशन हो सकता है, और वाटर लॉस इज नॉट गुड फॉर द प्लांट। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम पे ही ओपन होता है जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो इसमें वाटर फिल होता है एंड इट गेट स्वेल अप ड्यू टू विच द पोर बिकम ओपन। नाउ व्हेन इट हैज टू क्लोज इट, तो ये क्या करता है? ये सारे वाटर को बाहर रिमूव कर देता है एंड इट बिकम फ्लैसिड। ये कैसा हो जाता है? फ्लैसिड हो जाता है, मतलब ऐसे। और ये फ्लैसिड होने के बाद ये पोर, इसके वजह से क्या हो जाता है? जब वो दो चीज एकदम उसमें कुछ नहीं फिल है तो वो क्या हो जाएगी? इट बिकम मोर क्लोजर एंड गेट स्टिक टुगेदर, तो उसकी जो ओपनिंग है वो क्लोज हो जाती है। तो स्टोमेटा प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो रॉ मटेरियल में वाटर मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया स्टोमेटा के थ्रू। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर क्या था? क्लोरोफिल था ना। अब इसको क्या चाहिए? अब इसको सनलाइट चाहिए। तो सनलाइट तो एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेयर में है, ये प्लांट जहाँ है उसको सनलाइट मिल रही है, लेकिन ये सनलाइट की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ही अब्सॉर्ब होती है और वो यूटिलाइज्ड होती है। तो दैट सनलाइट इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल। सो जब ये तीनों चीज इसको मिल जाती है तो वहां पे रिएक्शन होता है वेयर, ठीक है, वेयर CO2 it is converted in the presence of sunlight in chlorophyll into C6H12O6 plus 6H2 sorry 6O2 क्योंकि बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है फोटोसिंथेसिस होने के बाद? ऑक्सीजन, जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, एंड दिस ग्लूकोज इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट, और अगर जो एक्स्ट्रा होता है व्हिच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सो दिस इज अ होल प्रोसेस ऑफ photosynthesis and how does plant get the nutrients? प्लांट को नरिशमेंट और न्यूट्रिएंट्स किससे मिलते हैं? सो प्लांट को न्यूट्रिशन और नरिशमेंट तभी मिलेगा जब क्लोरोप्लास्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में भी क्या इंपॉर्टेंट है? क्लोरोफिल हो, क्योंकि वही सनलाइट को अब्सॉर्ब कर रहा है और लाइट एनर्जी इज ओनली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, टू कन्वर्ट द CO2 and H2O into C6H12. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि photosynthesis is a process in which light energy is converted into chemical energy. So this portion is also being cleared, hopefully, I think. Now the next part is nutrition in amoeba. ठीक है, अमीबा क्या है? अमीबा इज अ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा की बात करते हैं, ठीक है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल है, उसके पास कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन ये सब करने के लिए नहीं, वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनेल है। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ये क्या शो करता है? होलोजोइक। होलोजोइक है, दैट मींस इट इज यूटिलाइजिंग द कॉम्प्लेक्स फूड, ठीक है, इट इज फीडिंग कॉम्प्लेक्स फूड एंड कन्वर्टिंग इनटू सिंपलर फॉर्म, और वो उससे अपनी न्यूट्रिएंट्स लेता है और एनर्जी बनाता है, ठीक है। और ये किस प्रोसेस के थ्रू करता है? द प्रोसेस दैट दे आर यूजिंग फॉर इज फेगोसाइटोसिस। ये क्या करता है? फेगोसाइटोसिस करता है। लाइक दिस इज अमीबा, ठीक है, यहाँ पे कोई फूड आया, कॉम्प्लेक्स फूड, नाउ इसको, इस फूड को एनगल्फ करता है। तो फेगोसाइटोसिस इज द एनगल्फिंग ऑफ फूड बाय चेंजिंग देयर बॉडी शेप। ये क्या करता है? ये जो मेम्ब्रेन है इसको ये चेंज करता है और ये क्या बना देता है? फॉल्स फीट। ये फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया बनाता है और ये स्यूडोपोडिया फूड को सराउंड करती है और बाद में एनगल्फ कर लेती है, और ये फूड वैक्यूल है, ये फूड वैक्यूल, और इसी के अंदर ये हमारा फूड है। तो इसने अपना बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज किया, स्यूडोपोडिया बनाया और फूड को एनगल्फ कर लिया। नाउ ये क्या करते हैं? यहाँ पे इसके एंजाइम्स हैं, ठीक है, एंजाइम्स इन फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करता है, ठीक है, दे ब्रेक इट इन द सिंपलर फॉर्म। अब जब ये फूड सिंपलर फॉर्म में उसकी बॉडी में ब्रेक हो गया तो जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म इस फूड को क्या कर लेता है? अब्सॉर्ब करता है। तो अब्सॉर्प्शन इज डूइंग डन बाय साइटोप्लाज्म। और जो वेस्ट है वो क्या करता है? ये इजेक्शन कर देता है, वेस्ट को रिमूवल कर देता है बाय, तो द वेस्ट इज रिमूव्ड बाय रप्चरिंग ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, ये अपनी सेल मेम्ब्रेन का रप्चर कर देता है यहाँ से और इसके थ्रू ये वेस्ट को इजेक्ट कर, वेस्ट का इजेक्शन कर देता है। तो दिस इज द न्यूट्रिशन that are seen in amoeba. तो the very first point कि holozoic nutrition show करता है through the process of phagocytosis, they form false feet, that is pseudopodium. They engulf the food, they digest it and absorb in cytoplasm, and then by the rupture of the membrane they release or remove the waste. This is the nutrition in amoeba. Now the most important that we have to discuss is nutrition in animals.
So actually the nutrition in animal I have discussed in the other video which is available in my channel itself, जहाँ पे पूरा एक process है ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion का, कि कैसे humans में होता है. In that the whole complete human digestive system is being taught. ठीक है, इसमें हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा में क्या स्टेप्स होते हैं. जस्ट वी आर गोइंग टू सी दोस स्टेप्स. न्यूट्रिशन इन अमीबा. सो न्यूट्रिशन इन अमीबा में सबसे पहला स्टेप होता है, सॉरी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में क्या होता है, कुछ स्टेप्स हैं. लाइक अगर हमें न्यूट्रिशन पहुंचाना है एनिमल को तो देन वी हैव टू perform a step that is ingestion, second is digestion, third is absorption, fourth is assimilation, and then fifth is egestion. In ingestion का means intake of food. Intake of food हम लोग करते हैं through mouth. Second is digestion. Digestion starts itself in mouth. Small amount of digestion. That means digestion is a process of breakdown of complex food into simpler. So they may be absorbed by our body. ठीक है, तो वो digestion होता है और digestion mouth में start हो जाता है and it is completed in small intestine. Absorption is done. That means the digested food has to be absorbed. एंड वो ब्लड वेसल्स में जाए तो उसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं विलाई दैट परफॉर्म दिस. एसिमिलेशन, दैट मींस द फूड दैट हैज बीन अब्सॉर्ब्ड इट हैज टू रीच टू द होल पार्ट ऑफ द बॉडी, ताकि वो ब्लड वेसल्स के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू हर पार्ट ऑफ द बॉडी में जाए और बॉडी की हर सेल, हर ऑर्गन उसको यूटिलाइज करें. एंड द वेस्ट, जो वहां से सब जगह से यूटिलाइज होने के बाद जो वेस्ट बचा है वो एनएस के थ्रू उसका इजेशन हो या रिमूवल हो. ठीक है, सो हाउ डज दिस ह्यूमन डाइजेस्टिबल्स डन? इट हैज बीन ऑलरेडी अपलोडेड इन माय चैनल itself. I will mention that link in the description box. Please go through it and try to cover these parts, and hopefully you have liked my videos or you have understood what I have tried to convey. And please share this video to your friends so they may also make themselves more clear about the topic. Thank you for today's.